brachioradialis. The base is formed by the imaginary line of the two epicondyles, and apex is the meeting point of the pronator teres and brachioradialis. This is the, and floor is formed by the two muscles brachialis and supinator. Brachialis is the muscles of, कहाँ की muscles है brachialis? बताइए. Brachialis आर्म की. आर्म में कौन कौन सी मसल्स हैं? बोलिए. आर्म में कौन है? एंटीरियर कंपार्टमेंट में कौन कौन सी मसल्स हैं? हाँ, 3 मसल्स हैं. बोलिए. बाइसेप्स, ब्रेकियलिस. These are the three muscles in the anterior compartment. And posterior compartment, how many muscles? Triceps is there. Have you understand? The brachialis and supinator. Supinator is the muscles of the extensor group. And this will supinator and brachialis is form the, what is form the floor of the cubital fossa. Floor is formed by the brachialis and supinator. Have you understand? Yes, sir. Just we will see the medially, laterally. This is the pronator teres. I have told you. Yes, sir. This one is the pronator teres is there, and this is the brachioradialis is there. Yeah, and supinator and brachialis is there. अब ये जो अलग अलग मसल्स हैं, ये रूफ किससे बनती है? आपके पास पॉइंट आया रूफ. रूफ है बराबर. स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया. स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया. और सुपरफिशियल फेशिया में ही स्किन में है वेन्स. यहाँ पर वेन्स है. सुपर रूफ में वेन्स है. लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द cubital fossa. Skin, superficial fascia is covering the forming the roof is there. Have you understand? समझ में आया? एल्बो जॉइंट जो है, मैं आपको दिखाता हूँ. सभी के पास है एल्बो जॉइंट, मेरे पास ही नहीं है. आप अपना देख सकते हैं. दिस वन, जस्ट यू सी दिस वन. यहाँ पर ये देखिए बेस है. यहाँ से मैं बना रहा हूँ. This one, just you see, this is the pronator teres. This one, brachioradialis. Meeting point is the apex, and two epicondyles of the humerus is form the base. And roof is formed by the skin and superficial fascia, and floor is formed by the brachialis and supinator. Brachialis and supinator. Just we will see the contents of the cubital fossa. The contents of the cubital fossa is there. First you will see most important contents. MBBR. You remember it. MBBR is the content of the cubital fossa. And this one, first M is the median nerve. And second B, this one, what is this thing? Brachial artery. Very good. Brachial artery. And third B, biceps brachii, tendon of the biceptal epicondyles, tendon of the biceps. And R, this one, radial nerve. This is the radial nerve. And you will see the most important which are present in the roof. The superficial is the medial cubital vein. What is this thing? Medial cubital vein. Just we will discuss one by one. These are the contents of the cubital fossa. And अंगूठे के से देखिए आप यहाँ से, ये जो हमारा हाथ है ना, यहाँ पर डॉर्सल वीनस फ्लेक्सिस बनता है, और अंगूठे की साइड में ये रेडियल साइड है. बराबर है ना? ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है. एनाटॉमिकल पोजीशन से यहाँ से ये यहाँ से ये आपका यहाँ से वीनस फ्लेक्सिस बना और यहाँ से आ रही है. यहाँ ये इधर से बैसैलिक आती है और यहाँ से सिफेलिक आती है. कौन सी वेन आती है? बैसैलिक और सिफेलिक. यहाँ से
यहाँ से सिफेलिक आ रही है और यहाँ से बैसैलिक आ रही है। सिफेलिक और बैसैलिक दोनों को ज्वाइंट करने वाली जो वेन होती है उसको क्या कहते हैं? मीडियल क्यूबाइटल। क्यूबाइटल फोसा में है, दोनों को जोड़ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? मीडियल क्यूबाइटल वेन। यहाँ से ये आ रही है इस तरह से, इसको हमने, एक है सिफेलिक वेन, सुपरफिशियल वेन है सिफेलिक वेन, और दूसरी है बैसैलिक वेन। ये क्यूबाइटल फोसा में दोनों को जोड़ रही है। दिस इज कॉल्ड मीडियल क्यूबाइटल वेन। सबसे ज़्यादा हम जो इन्फ्यूजन करते हैं इसी को प्रेफर करते हैं, वेन पंक्चर जो करते हैं तो हम इसी मीडियल क्यूबाइटल वेन को करते हैं। ये एडवांटेज है, कितना भी मोटा आदमी हो टूर्निकेट बांधेंगे, बांधने के बाद ये वेन प्रोमिनेंट हो जाती है क्योंकि बहुत ही सुपरफिशियल होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसको ही हम वीनस क्यों पंक्चर करते हैं? ब्लड निकालना हो या ड्रिप लगानी हो तो इसको क्यों प्रेफर करते हैं? क्यों? क्योंकि इसकी एक और खास बात है, इसमें लेग्जिटी कम है, इसमें फिसलती नहीं है लगाने पे। जब लगाने पे फिसलेगी नहीं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये फिक्स रहेगी। जब भी हम ड्रिप लगाते हैं तो फिक्स रहती है। इसको जो है, इससे एक दूसरी वेन लगी रहती है, उसको कहते हैं परफोरेटिंग वेन। परफोरेटिंग वेन ये डीप वेन से जुड़ती है। क्या बात है, ये इस तरह से डीप वेन से। शायद मैंने अपर लिम्ब जब पढ़ाया था बताया था कि सिफेलिक वेन सुपरफिशियल वेन है, बैसैलिक वेन है, बराबर है ना। इनसाइड ये सुपरफिशियल है। डीप वेन वैसे ही जैसे रेडियल आर्टरी आती है तो रेडियल वेन आती है, अल्नर आर्टरी आती है तो अल्नर वेन आती है, और अंदर ब्रेकियल आर्टरी है तो उसी के पैरेलल ब्रेकियल वेन जाती है। और ब्रेकियल वेन जो है उसी, ये जो ब्रेकियल वेन है वही कंटिन्यू एक्सिलरी वेन में करती है, और एक्सिलरी वेन सब क्लेवेन वेन में, और ब्रेकियोसेफेलिक इंटरनल जुगनल के साथ मिलकर के सब क्लेवेन ब्रेकियोसेफेलिक बनाती है। राइट और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक मिलकर के सुपीरियर वेना के बनाती है। डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है सिफेलिक वेन है, ये मीडियल क्यूबाइटल वेन है, ये परफोरेटिंग है, फिक्स ज़्यादा हो जाती है, जल्दी इजी हम पंक्चर कर सकते हैं, इसलिए हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? मीडियल क्यूबाइटल। यहाँ भी लगा सकते हैं, डॉर्सल वीनस प्लेक्सस में भी लगा देते हैं, इसमें कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें से ही जाएगा, लेकिन कंपैरेटिवली हम फर्स्ट चॉइस जो देते हैं ये क्यूबाइटल फोसा में देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीडियल क्यूबाइटल वेन है और यहाँ से सिफेलिक जुड़ी है, यहाँ से बैसैलिक जुड़ी है, और नीचे डीप वेन से जुड़ी है, ब्रेकियल वेन से जुड़ी है। हैव यू अंडरस्टैंड? जब भी कोई इन्फ्यूजन देंगे तीनों मार्ग से हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टैंड? और इसको फिक्सेशन है, इसलिए हम चॉइस करते हैं मीडियल क्यूबाइटल वेन। अब एक एक कंटेंट, ये मीडियल क्यूबाइटल वेन की बात हो गई। मीडियन नर्व, मीडियन नर्व क्या है, किससे बनती है मीडियन नर्व? बताइए आप। लेटरल पार्ट्स ऑफ मीडियन नर्व किससे बनती है? लेटरल डिवीजन ऑफ एनीबॉडी? तो है मीडियन नर्व, यहाँ कंटेंट्स है, यहाँ पर क्यूबाइटल फोसा में पास होती है मीडियन नर्व। क्यूबाइटल फोसा में जो बाइसेप्स ब्रेकिया, यू कैन फील, आप अपने में महसूस करिए, एक कड़ा कड़ा स्ट्रक्चर दिखता है, एकदम हार्ड स्ट्रक्चर दिखता है, हार्ड स्ट्रक्चर दिखता है, फील कर रहे हैं। ये क्या है? बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस टेंडन ऑफ बाइसेप्स। इसके मिडली, जस्ट यू रिमेंबर इट, इसके मिडली ब्रेकियल आर्टरी होती है, और ब्रेकियल आर्टरी के मिडली मीडियन नर्व। जस्ट यू रिमेंबर इट। ब्रेकियल आर्टरी बाइसेप्स टेंडन है, बाइसेप्स टेंडन के मिडली क्या होगा? ब्रेकियल आर्टरी। यू कैन फील द पल्सेशन ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी, बराबर है। ये ब्रेकियल आर्टरी है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ आ रहा है टेंडन, ये टेंडन आ रहा है, यहाँ पर ये इस तरह से ब्रेकियल आर्टरी है, यहाँ से ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी के बगल से ही यहाँ से मीडियन, दिस वन द ब्रेकियल आर्टरी, और यहाँ से जो है वो मीडियन नर्व, मीडियन नर्व जा रही है। ये समझ में आ रहा है ना? मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी,
ब्रेकियल आर्टरी क्या है, पल्सेशन देख सकते हैं। और जब हम बीपी लेते हैं पेशेंट का, तो वहाँ बीपी का पेशेंट जो लेते हैं तो क्या करते हैं, हाँ ब्रेकियल आर्टरी में ही ऑस्कल्टेशन करते हैं। जो साउंड का क्या नाम है जो बीपी में सुनाई देती है, उस साउंड का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द साउंड विच आर वी आर ऑस्कल्टेटिंग? कॉर्चॉफ साउंड, रिमेंबर इट। उसका नाम ही साउंड का है कॉर्चॉफ साउंड। उसका नाम है जो हमें सुनाई देती है, उसका नाम है कॉर्चॉफ साउंड। कॉर्चॉफ साउंड है वो, कॉर्चॉफ साउंड सुनाई देती है। हैव यू अंडरस्टैंड? median nerve, brachial artery, our tendon of bicep and radial nerve. Just imagine it. पानी बाद में पीना तुम। मैं देख रहा हूँ हाथ में एंटी ब्रेकियम में फ्लेक्चर ग्रुप को, दिस इज द एंटीरियो मीडियल ग्रुप, दिस इज द फ्लेक्चर ग्रुप। फ्लेक्चर ग्रुप को मीडियन नर्व सप्लाई देती है किसको किसको देती है? कितनी मसल्स हैं फ्लेक्चर में? फ्लेक्चर में कितनी मसल्स हैं? 8 मसल्स हैं, किसी को याद नहीं है। 5 + 3 एक एक्सटेंसर कितनी है? 12 एक्सटेंसर 12 है, ये 8 है। टोटल कितनी मसल्स है एंटी ब्रेकियम में? 5 मसल्स सुपरफिशियल है और 3 डीप है। हैव यू अंडरस्टैंड? 8 मसल्स हैं। 8 में जो मसल्स है मीडियन नर्व कितने को सप्लाई देती है? 7 को। फ्लेक्चर कार्पी अल्नरिस इसको सप्लाई देती है अल्नर नर्व। फ्लेक्चर डिजिटोरम प्रोफंडस उसको मीडियन और अल्नर दोनों देती है। हैव यू अंडरस्टैंड? 6 जो इसका मतलब 7 मसल्स एंटी ब्रेकियम की हैं, उनको सप्लाई दे रही है। हैव यू अंडरस्टैंड? आर्म में मीडियन नर्व की कोई सप्लाई नहीं। 4 आर्म में कितनी मसल्स को सप्लाई है? 7 मसल्स को। आउट ऑफ 20 7 मसल्स को सप्लाई किसकी है? मीडियन नर्व की। हैंड में कितनी मसल्स हैं बोलिए? हैंड में कितनी? 20 मसल्स में कितनी मसल्स को मीडियन नर्व सप्लाई देती है? 5 को। वेरी गुड, 5 को सप्लाई देती है। हैव यू अंडरस्टैंड? 5 को मीडियन नर्व सप्लाई देती है और 15 को अल्नर देती है। हैव यू अंडरस्टैंड? 15 को अल्नर देती है और 5 को मीडियन नर्व सप्लाई देती है। इसी तरह से एंटी ब्रेकियम में 4 आर्म में यहाँ पर 7 को कौन सप्लाई दे रहा है? मीडियन नर्व। और 2 को कौन सप्लाई दे रहा है? अल्नर नर्व। और एक्सटेंशन बची कितनी? 12 को नर्व सप्लाई किसकी है? रेडियल नर्व। आर्म में कोई भी मसल, कोई रेडियल और मीडियन। आर्म में एंटीरियर कंपार्टमेंट है जो, उसमें 3 मसल्स हैं। इन एंटीरियर कंपार्टमेंट में जो 3 मसल्स हैं उनको सप्लाई कौन दे रहा है? मस्कुलोक्यूटेनियस, लेटरल कॉर्ड की ब्रांच है। और ट्राइसेप्स को कौन दे रहा है? रेडियल। वी विल कैलकुलेट इट। रेडियल मीडियन नर्व कितनी मसल्स को सप्लाई दिया? आर्म, 4 आर्म और हैंड। जस्ट वी विल सी आर्म, 4 आर्म नो सप्लाई, 4 आर्म just 7 and in hand 5 and in the radial nerve is giving in the arm 1 triceps and 4 arm just 12 and in the hand no, only the skin supply is there, that this one skin को supply किया। just we will see about the ulnar nerve, तीसरी nerve है। yes sir। अल्नर नर्व क्या? अल्नर नर्व जो सप्लाई देती है वो किसको देती है? अल्नर नर्व। बोलिए, मैंने रटाया है आपको। yes sir। अल्नर नर्व किसको देती है? ब्रेकियम में किसी को है? ब्रेकियम को है क्या? नहीं है। अल्नर सप्लाई दे रही है ब्रेकियम में? नहीं। एंटी ब्रेकियम में तो कौन सी? फ्लेक्चर कार्पी अल्नरिस, फ्लेक्चर डिजिटोरम प्रोफंडस, इसको तो वो अल्नर दे रही है। और रिमेनिंग 15 मसल्स हैं हैंड की, उसको कौन दे रहा है? अल्नर। 15 जो है, इसी अल्नर को हम क्या कहते हैं? म्यूजिशियन नर्व। म्यूजिशियन नर्व। गिटार बजाएं, तबला बजाएं, जो है ना, हारमोनियम बजाते हैं, तो कौन सा नर्व का कमाल है? अल्नर नर्व। और मीडियन नर्व को लेबर नर्व कहते हैं। मीडियन नर्व कैसा है कि जो थिनर मसल्स हैं, ये अंगूठे की, ये इसको हम थिनर मसल्स कहा, इसको हाइपोथिनर कहा। और यहाँ पर लुम्ब्रिकेल्स हैं, डोर्सल इंटरऑसाइट, पामर इंटरऑसाइट, 5 ग्रुप बताए थे। थिनर में 4 मसल्स, हाइपोथिनर में 4 मसल्स एंड लुम्ब्रिकेल्स 4 और डोर्सल इंटरऑसाइट 4 और पामर इंटरऑसाइट। टोटल हाउ मेनी मसल्स इन द हैंड? 20 मसल्स।
थिनर की जो 3 मसल्स हैं और फर्स्ट सेकंड लुम्ब्रिकेल्स है, ये 3 मसल्स जो हैं हैंड की, इसको सप्लाई कौन देता है? मीडियम देता है। पहली और दूसरी लुम्ब्रिकेल्स। ऐसे कितनी हो गई हैंड की मसल्स? 5 और मीडियनर। और यहाँ पर जो है एंटी ब्रेकिंग में कितने की दे रही है? 2। ये एंटी ब्रेकिंग में कौन कौन से? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, ये 2 मसल्स। दिस इज द दिस इज अबाउट द क्यूबाइटल फोसा। इसकी अप्लाइड एनाटॉमी देखेंगे, याद रखिएगा MBBR। इसकी मेजरमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर ब्रेकियल आर्टरी पे हम करते हैं। मेजरमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर, auscultation in cubital fossa, auscultation, the pulsation of brachial artery in which region? Cubital, in cubital fossa. Second, vein का पंक्चर करते हैं, वेन पंक्चर। जो भी इन्फ्यूजन देना होता है हमको, वो हम किसमें वेन पंक्चर करते हैं? मीडियल क्यूबाइटल वेन। मीडियल क्यूबाइटल वेन, वी आर हैविंग ए puncturing of that. Have you understand? Yes. And the most important thing, we will palpate the tendon of biceps. हम सबसे पहले टेंडन ऑफ बाइसेप्स पल्पेट करते हैं और उसके मिडिली लोकेशन है किसकी? ब्रेकियल आर्टरी। We feel the pulsation of the brachial artery medial to tendon of bicep. Have you understand? This is the tendon of bicep. ये जो है ये important है. This is the boundary of the cubital fossa. अब चलिए बोलिए एक बार सब लोग बोलेंगे। अपेक्स किससे बनता है? What is the contents of the cubital fossa? median nerve, tendon of biceps, brachial artery and और रूप में क्या है? medial cubital vein. cephalic vein है, basilic vein है. This is the cubital fossa. Cubital fossa is the triangular fossa which is situated in front of elbow joint. It's clear? Yes, sir. If injury in the radial nerve, what will happen? Wrist drop. Wrist drop. Very good. Is the wrist drop? Why is having the wrist drop? क्योंकि extension Why is having the wrist drop? extension नहीं होता सर। Because there is no extension. All the muscles are taking the insertion nerve supply, the extensor group by the radial nerve. There is no extension. What will happen? Like that. Wrist drop. No extension. This is flexion. This extension. No extension. What will happen? The wrist drop. Have you understand? If injury of the ulnar nerve, what will happen? Claw hand. Injury of the. Have you understand? Median and ulnar both are having the same picture is there because it's having the nerve supply to the which group? Flexure. In the brachial plexus, anterior and posterior division is there. We have discussed. So as I think this is the all about cubital fossa. Thank you, sir. Have you understand? जब अपर लिम्ब का है तो अपर लिम्ब कैसा हुआ? उसका 90 डिग्री रोटेशन हुआ। 90 डिग्री रोटेशन होने की वजह से दोनों जो अंगूठे हैं वो ये एनाटॉमिकल पोजीशन। यही कारण हुआ कि 90 डिग्री रोटेशन होने के कारण सामने की ओर इसमें क्या है? फ्लेक्सर ग्रुप है। सामने क्या है? फ्लेक्सर ग्रुप है, क्योंकि ये लैटरल रोटेशन हुआ। लेकिन जब लोअर लिम्ब में अगर रोटेशन हुआ कैसा हुआ? मिडिल रोट। तो ग्रेट तो दोनों के पास आ गए, तो सामने की ओर कौन सा आ गया? एक्सटेंसर ग्रुप। लोअर लिम्ब में सामने की ओर कौन सा ग्रुप है? एक्सटेंसर ग्रुप। और अपर लिम्ब में एक्सटेंसर ग्रुप पीछे। ये फर्क है दोनों में, मिडिल रोटेशन एंड लैटरल रोटेशन। बराबर है?